Good afternoon, everyone, and a very happy new year to you. This is the very first community meetup of this year. Today, I'll be covering the product updates and the ecosystem updates, and we have a special guest, uh, Sini, who will be taking up who will be doing the NGO spotlights very quickly with the product updates. For people who've not been familiar with this slide, so we've been consistently keeping the same slide over the past months. And the idea here is that anything that's in orange is in progress. Anything that's in green was either live or ready to go live. And only any item that has gone live in the past month shows up here as green. And anything that is new that's been picked up is shown as red. From an overall uh, headline perspective, the improving the ease of self-service has always been on the list for the past few months. If you've been noticing, the mandatory upgrades came in, I think, 2 months ago. Two of these items were ticked off. Metabase and Superset was ticked off. Last month, we also upgraded Postgres, so that is ticked off. Java work is in progress in the sense that it's been done, but we still want to spend some time testing it to make sure that there are no surprises when we go live. So that's the one thing that's pending. From a self-service perspective, the three items that are marked in progress were also in progress last month. The first one is about getting more self-serviceable reports automatically through the system. There is one which tries to understand whether when you upload a new organization zip file, if there are any differences, it will show the diff. There is work that's ongoing on it right now. We're hoping to get both of these productionized as soon as we can. Uh, the improved monitoring was a piece that went live last month, but there has been some feedback, so we brought it back to in progress and yes, working on it a bit more. The analytics data pipeline, we said there were some issues that those have been fixed. They've gone live and things are looking good. There are two new things that we are adding up this year. The work will most probably start only by February or March. The first one is the simplification of the application designer, which is the user interface that you see when somebody wants to configure Avni. And since we've focused a lot on self-service, right? This application designer, people have said, is a bit more overwhelming. So the buttons need to be placed in the right location so that it is not as hard or as overwhelming for somebody who is looking at it for the first time. So that's the main objective of this simplification. There are a few line items in here which will probably cover once we complete the analysis and get like a complete fleshed out feature. We'll probably talk about it sometime next month. There's also something that we are working on, self sign up, where people can or an organization can essentially sign up for an account by themselves and to automate that entire pipeline. Right now, the pipeline is manual, but we're hoping that with self service, we will have a lot more self signups. So that's something that is under consideration. We will most probably work on this again, Feb March timeframe. Uh, just one notice for those who've been using Avni right now. There is one new user who's coming in with significantly high volume for the next 2 months. So we are also doing some serious upgrades on the infra side to make sure that we handle the load. If you see something happening, please to raise a ticket or talk to us. Or if there is something that we know for sure, we'll also inform over the Avni users emailing list. On the ecosystem side, the Avni Grameen work with ATCF, we've been working with them for rejuvenating water bodies, essentially desilting water bodies. And this work has been going on for the past few years. Every new year, we add a few new things to try to make the operations a bit smoother. And there are some things that are happening this time as well. Uh, so this is mostly specific to Grameen. So I don't know how relevant it will be for the entire community. But this will be some custom integration that will be happening between our ATCF instance and the and Glyphic. Animate Charitable Trust has also been here, I think, 2 months ago.
there was a first round that went live. Right now, we are working on a second project with Animate Charitable Trust with a project called Poshan Ki Disha, which is mainly around malnutrition and reproductive care. ML Dhavle Memorial Trust is also something that we talked about, I think, in the last webinar. Last webinar, the work had not started. Now the work has started and it's ongoing. CSJ is also something that we had talked about last month. This is the first time we are moving or we are trying to use Avni for somebody in the legal domain. And here the objective is to build a legal case management solution. I can't see the list of participants, but if anybody from these organizations are here, Arjun, can you see if there is anyone here who, or if there's anybody, could you please unmute yourself and speak a few words? Yeah. Like there's nobody this month. All right. Uh, this is something that we are actually trying to do, which is to build the implementer community. This is something that we are trying to focus to do in this year. As of right now, I think there's one individual who has, outside of Samanvay, obviously, who's started working on one of the implementations. And there's also an organization who is like who's interested in doing Apni implementations. So the idea here is that as self-service and other implementations grow, we'll also need a bigger team to service Apni implementations. We are hoping to have a lot more by the end of this year. And that's an update on the implementer community. This is again a slide from last month. We've had the conference is happening on Jan 23rd. The only update from here is that there are things that will be discussed around product evolution and roadmap, ecosystem partners. There will be some people who are joining in, some discussions around security and privacy, some around working at scale. There'll be a few working sessions that we're thinking around the app, Metabase, Superset, and things like that, which hopefully people who are joining in can attend and will be useful for them. There will be something around sustainability that we wanted to cover. With that, short updates, we'll move on to the NGO spotlights. This time we have uh, collectives for integrated livelihood initiatives, which is a Tata Trust initiative. And from CINI, we'll hear more about CINI from our speakers. We have Divya, who is the Senior Technical Officer, who's been in CINI for the past 14 years, I think. We have Imtiaz Ansari, who's the cluster coordinator. Imtiaz holds a degree in of Bachelor's of Science and has a diploma in computer applications. With over 9 years of dedicated experience in the education sector, he's been passionately working to enhance learning opportunities for students since 2015. Currently, he serves as the cluster coordinator in CINI at the Gumla district of Jharkhand, where he oversees educational initiatives and collaborates with schools and district education departments to improve academic outcomes. Welcome, Imtiaz. Welcome, Divya. Uh, Sukhdev has been working with CINI since 2012, serving in the role of monitoring and evaluation associate. Currently, he is responsible for leading the MIS in the states of Jharkhand and Odisha. He holds a degree of Masters in Rural Development and Diploma in Computer Operator and Programming Assistant. His work location is situated in Khunti, Jharkhand, where he actively contributes in the organization's objectives and oversees various monitoring and evaluation activities within the region. Welcome, Sukhdev. Durgi is a permanent resident of Salehatu village in Khunti district. She holds a Bachelor's of Arts and a Bachelor of Education degree with more than 3 years of experience in the field of education.
She's been working as a field coordinator with CINI since 2017. Welcome, Zaki. And over to you, CINI team. I'll Yes, stop sharing. yes, thank you, Vinay. I'll start sharing my screen. You can see my screen, right? Yes. Okay. Um, Thank you. And before going into sharing our experiences with Avni platform, I would like to share um, the work which we have been doing over the past 10 to 15 years. So, Collectors for Integrated Livelihood Initiatives is an associate organization of the Tata Trust. It was founded in the year 2007 and it has its presence in 6 states in India, working in 5 thematic areas, which include livelihoods, working through its Lakpati Kisan program, education, focusing on school education, drinking water and sanitation, and health, and renewable energy. We have been focusing in the central Indian belt as these states have the highest percentage of tribal population, and we as CINI have a mandate to work with the tribal communities to improve their quality of life. We started our work in the year 2011 with around 30 schools, and now currently we are working with approximately 2,500 schools in 3 states. I haven't mentioned the third state here, but our intensive work is in Jharkhand and Odisha. In Jharkhand, we are working in 8 districts, and in Odisha, we are working in three districts. Um, we are working in schools both intensively and extensively. So here we have given the numbers of only the intensive schools we are working in. Extensively, we are working with the district and the state education department, and our work majorly revolves around enhancing the school environment, wherein we start working with the children and teachers early in the morning, helping them learn, clean the premises, create spaces in the morning assemblies where the students can express themselves confidently, hone their talents and the skills. And apart from that, we create print-rich environments, develop kitchen gardens together with the children and the community, and integrate technology as well. And during class hours, we support the teachers in planning and conducting academic activities focused on foundational literacy and numeracy in primary grades, and science and math in elementary grades. Library is also one of the major components of our program because here the children have oral culture, and to make them lifelong learners, we feel library is an important component as it inculcates reading habit among them. Without community participation, school management committee involvement and parental participation, we feel we cannot achieve quality education, and hence this also forms a very important component. We also closely work with the Panchayati Raj institutions and support in creating a community connect with the school. System strengthening is another important component of our program, and we work closely with the state, district, and block education departments. At the block, there are block resource centers, which are academic structures with responsibility of providing academic and administrative support to the teachers, but mostly administrative support is provided. So we focus on helping the department provide academic support to the teachers, and we have tried to create BRCs as FLN resource centers, and we provide teaching learning aids, and we also capacitate the teachers. So I already spoke about the components of the program here on which we are working, and we have certain key performance indicators on which we have to capture data both quantitatively and qualitatively to measure our uh, inputs, outputs, outcomes, and also to see the impact of our work. And these are the KPIs which are mentioned in the slide, like how many schools we have been reaching out, how many teachers we have been reaching out, how many teachers we have been able to provide trainings to teacher educators, CRPs, how many of them have completed
trainings, how many students we have reached, how many functional libraries we have been able to create in the schools, how many functional SMCs we have been able to create. So these are certain key performance indicators which we try to capture. And earlier, in the previous years, we have been working since 2011, and we had an MIS platform through which we collected data. But we stopped working on that platform because it was only a platform where data was collected and we couldn't actually analyze and make decisions, etc. And so we moved on to collecting data in the Excel sheet. So earlier in 2011, we had started working with only 30 schools, and then we increased the number of schools to around 70, and then further we increased the schools to 150. But now we have around 2,500 schools in these three states. So collecting data in the Excel sheets, because we had been collecting data in the Excel sheets and Google Forms and Google Sheets, so that was not possible for us. After that, we started collecting data in the Kobo tool, but again, we had certain limitations. We have also tried collecting data in the M-Water portal. We still do collect some of the information there, data there. And at present, from the past year, we have started working with Samanvay Foundation, and we have the team has helped us develop this application, and we have started feeding in data and doing analysis and getting the collated data and looking at a program. So I have my team members with me. So Durgi is the field coordinator who actually uh, inputs the data in the app. So she will be sharing her experience. uh, so I would request her to share how she has been uh, getting support to Lovely. But before that, there were certain issues uh, MIS, like duplication of data, party members, uh, like errors, and there was spelling errors, and they had difficulty in understanding the questions also in the different platforms we had been using. But now with Avni, our team members are trying their best to get the data in the correct form. So would request Durgi to share her experience of how she has been doing Lovely. So Durgi, आप start करें. थैंक यू दिव्या मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि हमने देखा कि फील्ड के जो कार्य है उसको हमने अलग अलग तरीके से डाटा के रूप में कलेक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन इसमें देखें कि हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज किया है। कभी हमने उसको एक्सेल में कलेक्ट करने का कोशिश किया, और कभी हमने हैंड रिटन कॉपी में भी लिखने का कोशिश किया। लेकिन इसमें ये देखने को मिला कि कभी-कभी वो एक्सेल में जब हम रखते हैं, कोई भी फाइल में डेटा को रखते हैं, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वो फाइल से वो डेटा ही डिलीट हो जाता है। कभी-कभी हम कॉपी में लिखते हैं, तो वो कॉपी में लिखा हुआ कहीं गायब हो जाता है। तो इस तरीके से मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, और इसमें ये हमने देखा कि उस तरीके से डिलीट हो जाता है, तो फिर हमें टीचर से फिर कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, या तो फिर स्कूल में जाके फिर दोबारा से हमें डाटा लेना पड़ता है। और अब जैसे ही ये आनी ऐप डेवलप हुआ है और इस पर हमें ओरिएंटेशन दिया गया, तो ये भी हमें मतलब शुरुआती दौर पर तो ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी लंबे-लंबे फॉर्मेट है, तो माने भरने में काफ़ी समय लगेगा। लेकिन फिर इसको हमने कई बार प्रैक्टिस किया अपने तरीके से, और डमी डेटा के रूप में 4 से 5 बार इसको हमने अपलोड किया। तो अपलोड करते-करते हमें ये समझ में आया कि हमें किस तरीके का डेटा लेना है, और इसमें किस तरीके का डेटा को हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर इसमें एक चीज़ हमें ये अच्छा लगा कि हम जैसे काम करते हैं फील्ड स्तर पे 4 से 5 कंपोनेंट में, और इस चीज़ को हमें कलेक्ट करना होता है, तो पहले था कि एक ही फ़ॉर्म में सारा चीज़ को हम
कलेक्ट करते थे, लेकिन इसमें हमने देखा कि अलग-अलग कंपोनेंट का अलग-अलग वहाँ पे कैटेगरी किया हुआ है। तो हमें इसको भरने में काफ़ी आसानी लग रही है। जैसे कि हम जा रहे हैं फील्ड, तो वहाँ पे कोई स्कूल का हमें कोई एक ही इंडिकेटर पर हमें भरना हो, मतलब भरना है। जैसे हमें मान लेते हैं लाइब्रेरी का ही भरना है। तो यहाँ पे क्या है कि उस स्कूल को हम खोल के तुरंत हम लाइब्रेरी इंडिकेटर को खोल के उसका जो वर्तमान स्थिति है, उससे जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है, उसको हम आराम से हम फ़िल का कर पा रहे हैं। और ये हमें डाटा जो भरना होता है, 1 से 26 तारीख के बीच में ये डाटा हम भरते हैं। और ये हमारा मतलब 1 से 26 तक ये शेड्यूल हो जाता है। और अगर मान लिए किसी कारणवश हम 26 तारीख तक हम उसको भर नहीं पाए, तो वो ऑटोमेटिक हमें रिमाइंडर के तौर पर ये हमें बता देता है, वो ओवरड्यू में चला जाता है। और जैसे ही उस ऐप को हम ओपन करते हैं, तो वो हमें ओवरड्यू में दिखता है, तो हमें भी वो पता चल जाता है कि इस डेटा को हमें भरना है। और हम जैसे ही भरते हैं, तो वो फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वो शेड्यूल हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मंथ के लिए हमें ये जानकारी भी मिल जाती है कि हमें नेक्स्ट मंथ और क्या-क्या करना है। और इसमें हम एक चीज़ ये देखें कि ये जो डेटा है, इसको हम ऑफ़लाइन भी हम चलते-फिरते मतलब आराम से हम भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इंटरनेट चाहिए होगा तभी भर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। और इसमें कई सारा डाटा है, इसको हम आसानी से उस चीज़ को हम उसमें कलेक्ट कर पा रहे हैं। जो भी हम फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, उन सारा डेटा को हम मने आराम से हम भर पा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि टीचर ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है। टीचर के साथ में हम 2 तरीके से हम उनको सहयोग का काम कर रहे हैं। एक ऑन साइट सपोर्ट करते हैं और एक है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का अगर देखा जाए तो उसमें बहुत लंबा-चौड़ा उसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। लेकिन हम जैसे ही हम स्कूल जा रहे हैं, टीचर का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन करते-करते अगर उस चीज़ को हम भर दे रहे हैं, तो ये काफ़ी आसानी हो जा रहा है और उसमें कई सारा डाटा वो कैप्चर हो रहा है। मान लिए एक टीचर का हम ऑब्जर्वेशन को देख रहे हैं, तो वहाँ पे वो सवाल आता है कि कौन-सी क्लास के साथ में टीचर काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये भी सवाल पूछा जाता है कि वो कंबाइन क्लास कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं या तो फिर स्पेशल किसी एक क्लास का वो क्लास ले रहे हैं। तो हम जैसे ही वहाँ पे कंबाइन वाला हम येस कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे ऑटोमेटिक है कि 1 से 2 क्लास वहाँ पे ऑप्शन वो अपने आप वो आते जाता है। वहाँ पे प्लस का साइन है, तो जैसे ही हम एक प्लस का साइन को हम क्लिक करेंगे, तो वो अगली क्लास का भी वहाँ पे वो वो सारा चीज़ वो रिक्वायरमेंट के लिए फॉर्मेट आ जाता है। और फिर वो उसको हम देखते हुए हम काफ़ी अच्छे तरीके से भर सकते हैं और फिर आगे वहाँ पे सवाल आती है कि वर्तमान क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे है, टीचर का बिहेवियर कैसा है, वो किस तरीके से टीचर के साथ, बच्चों के साथ में वो कार्य कर रहे हैं। लास्ट में वो है कि एविडेंस के तौर पर क्लासरूम का फ़ोटो है, उसको भी हम क्लिक करके उसमें अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब जो भी चीज़ है काफ़ी बारीकी से वहाँ पे हम स्टोर कर पा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आगे लाइब्रेरी को लेके भी उसी तरीके से काफ़ी आसानी से माने वो भी फ़ील कर पाते हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरी का वर्तमान कंडीशन क्या है। फिर अगर वहाँ फंक्शनल है तो फिर ऑटोमेटिक आगे वो ऑप्शन अपने आप आते जाएगा। अगर हम उसको नो कर देते हैं तो वो वहीं पे क्लोज़ हो जाता है। और लास्ट में ये भी है, इसको हम कभी भी ये भर सकते हैं और जो भरा हुआ चीज़ है, जो हम भर लिए हैं, अगर हमें देखना होगा तो उसको हम ओवरव्यू में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो आप सबों को पुनः थैंक यू। So next, I am showing the screenshot of the app. So I would request Sukhdev to
explain this app further. सुखदेव, आप ये आप explain कर दीजिए ऐप को. सुखदेव, आप है ना? यस मैम. हाँ, आपकी मैंने म्यूट था, सॉरी. थैंक यू मैम, सॉरी. हाँ, मेरा नाम सुखदेव महतो है और मैं सिडनी पे 12 साल से काम कर रहा हूँ एज अ M&E एसोसिएट. तो इस स्क्रीन पे हमने 3 स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं. ये अवनी एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है और इसमें पहला जो स्क्रीनशॉट हम देखेंगे तो इसमें है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेटा है, फॉर्म्स है. इसमें हम एक सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट का स्क्रीनशॉट लगा है. इस पे हम देख रहे हैं कि पहला जो फॉर्म्स है उसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मंथली रिकॉर्ड्स. क्या है कि हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के, जो मंथली कलेक्शन करते हैं. लाइक हम एजुकेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं तो कितना टाइम हम उसके साथ मीटिंग्स किए हैं, अपना प्रोग्राम का कुछ रिपोर्ट शेयरिंग कर रहे हैं, या हम वहाँ पे जाके मीटिंग पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ होती है, या हम वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. तो इस टाइप का इस पे क्वेश्चन आया है जो हम मंथली टीम से लेते हैं और इस फॉर्म पे ये टीम सबमिट करती है डेटा. वैसे ही देखेंगे सेकेंड पे दिख रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टीम कैपेसिटी बिल्डिंग. इस पे ये भी एक फॉर्म्स है. इस पे हम ये डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमारा जो इंटरनल टीम है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो रही है, उसको ट्रैक किया जाता है. ये भी मंथली भरा जाता है और इस पे देखा जाता है कि हम टीम का कैपेसिटी कितने कितने दिन का किया है, कितने मेंबर्स का किया है, किस टॉपिक पे हमने उसका ट्रेनिंग किया है. तो ये फॉर्म्स है. फिर ऐसे ही है, फिर टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग करके फॉर्म है. जो हम गवर्नमेंट टीचर होते हैं स्कूल के, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है. तो इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं जैसे कि हमने टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग किया तो किस टॉपिक पे किया है, कितने दिन का किया है, कितने घंटे का क्या किया है, उसका मिनट्स हम इस पे अपलोड कर सकते हैं, उसका कुछ फोटो भी अपलोड कर सकते हैं. तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ फॉर्म्स हैं जो हमने स्क्रीनशॉट पे लगाए हुए हैं. सेकेंड स्क्रीनशॉट हमने लगाए है स्कूल लेवल के, जो हम स्कूल से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. तो इस पे देखेंगे, फर्स्ट है कि स्कूल एनुअल फॉर्म्स है. ये हमारा स्कूल का इंफॉर्मेशन एक लेते हैं हम लोग, जो एनुअली वन टाइम भरा जाता है. फिर है SMC स्कूल मॉनिटरिंग है. तो इस पे हमारे साथ SMC मेंबर का भी इन्वॉल्वमेंट है. तो SMC के द्वारा स्कूल पे मॉनिटरिंग किया जाता है. फिर उसके लिए कुछ क्वेश्चन आया है जैसे कि SMC की मीटिंग्स मंथली हो रही है या नहीं, उसकी ट्रेनिंग हो रही है तो कितने लोगों के साथ हो रही है, उसका मिनट्स कहाँ है, मतलब उसका एक्शन प्लान क्या है, आगे क्या डिसीजन मेकिंग है कि SMC को लेके क्या एजेंडे आ रहे हैं. तो ये सारे डेटा इस पे डाले जाते हैं. फिर स्कूल लेवल पे भी हम टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं. जैसे कि हमारा जो फील्ड कोऑर्डिनेटर है वो स्कूल विजिट करते हैं तो वहां जाके टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. तो उसका एक फॉर्म्स हमारे लिए है जिसमें हमने काफी इस पे, ये एक स्क्रीनशॉट है, अगर इसके अंदर जाएंगे तो काफी क्वेश्चन आयर भी हैं. मंथली स्कूल मॉनिटरिंग है. मंथली स्कूल मॉनिटरिंग में भी हमने काफी क्वेश्चन आयर डाले हैं, लाइक कि हमारे टीम मेंबर कितने बार विजिट किए हैं स्कूल्स, वहाँ पे जाके कितने बच्चों के साथ किए हैं एक्टिविटी की, या बाल संसद के साथ काम किए हैं, SMC के साथ काम किए हैं. तो ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म पे डाली जाती है. लाइब्रेरी मंथली रिपोर्ट से, ये लाइब्रेरी से रिलेटेड इसमें डेटा आता है, जैसे कि हम कितने बच्चों को बुक इशू किए हैं, वो किस टाइप का बुक्स ज़्यादा यूज हो रहा है, या लाइब्रेरी एक्टिविटी हो रही है, कौन सी लाइब्रेरी एक्टिविटी हो गई है, कौन सी नहीं हुई है. तो ये सारा ट्रैकिंग स्कूल लेवल पे ये होता है. तो ये 2 स्क्रीनशॉट है. तीसरा जो स्क्रीनशॉट है वो स्कूल का एक स्क्रीनशॉट है जिसपे ये होम पेज है एप्लीकेशन का, और इस पे जो पहला दिख रहा है शेड्यूल दिख रहा है जो ग्रीन कलर से है. तो इस पे हमें ये दिखता है कि हमारा जो डेटा भरने भरने का जो स्कूल का नंबर है यहाँ पे आता है कि हमें कितने स्कूलों का डेटा भरना है. तो इस पे ये दिख रहा है. फिर ओवरड्यू में है कि हमारा टाइमलाइन जिस स्कूलों का भरना था उसका टाइमलाइन ये
ओवर हो गया तो ये ओवर ड्यू में इसका नंबर आता है। तो ये एक रिमाइंडर के तौर पे अच्छा है कि हमें ये दिख जाता है कि कितना स्कूल का डेटा हमें भरना है, और कितना स्कूलों का डेटा जो मुझे भरना था टाइम से वो हमने सबमिट नहीं कर पाए, वो ओवर ड्यू पे चला जाता है। तो ये रेड कलर में एक अलार्म दिखाता है। फिर नीचे में आएंगे तो हम 24 आवर्स का है कि हमने कितना स्कूलों का डेटा भरे, तो वो एक आता है यहाँ, और पूरा ओवरऑल कितना यहाँ पे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो वो एक यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट पे दिख रही है। तो ये है ये। Thank you, Sukhdev. So, like Durgi is filling in the data in the app, we have around 120 to 25 team members who similarly fill the data in the app, and then we have team members at the district level, the cluster coordinators who have the collated data, and they see the status of the data, and based on that they decide on the task and the implementation plan, etc., and how the district is doing. So Imtiaz is here, who supports Durgi, and he is looking after Simdega district, and he will share his experience on how this particular app is helping him to review the work of his team members, or review the work plan he has for his own district. So Imtiaz, if you can start sharing, please. थैंक यू दिव्या मैम। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है और मैं सिनी टाटा ट्रस्ट में एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं झारखंड के सिमडेगा जिला में कार्यरत हूँ। मैं सिमडेगा जिला के 3 ब्लॉक्स के फील्ड कोऑर्डिनेटर को सपोर्ट करता हूँ। जब फील्ड कोऑर्डिनेटर अवनी डाटा भरते हैं तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंसोलिडेटेड डाटा रिव्यू कर पाते हैं। अवनी ऐप में हम लोग आसानी से विजिट शेड्यूल और उसके स्टेटस को चेक कर पाते हैं, और उसी के बेसिस पर फील्ड कोऑर्डिनेटर का फॉलोअप भी करते हैं। अवनी ऐप में सबसे स्पेशल चीज ये है कि इसमें जो कैचमेंट एरिया है वो केवल और जो जिला में हम लोग काम करें उसी जिले का दिखता है, जबकि अदर ऐप जो हम लोग पहले यूज करते थे उसमें सारे जिले का दिखता था तो उसको फिल्टर करना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है कि जो जिला में हम लोग काम करें उसी जिला और ब्लॉक का डाटा हम लोग को दिखाई देता है, तो हम लोग आसानी से उसको रिव्यू कर पाते हैं। और अवनी ऐप का डाटा यदि किसी फील्ड कोऑर्डिनेटर ने नहीं भरा है तो फिर वो ओवरड्यू के रूप में दिखाई देता है, और हम लोग को आसानी से पता चल जाता है कि फील्ड कोऑर्डिनेटर ने डाटा नहीं भरा है, तो हम लोग को उस फील्ड कोऑर्डिनेटर को फॉलोअप करना है। और मैं जो फॉर्म भरता हूँ वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का फॉर्म भरता हूँ, जिसमें टीम कैपेसिटी बिल्डिंग का फॉर्म होता है। उसके अलावा टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग और मंथली रिकॉर्ड का फॉर्म होता है। तो टीम कैपेसिटी बिल्डिंग का फॉर्म जो हम लोग भरते हैं तो उसमें जो वर्तमान महीने मंथ में हम लोग जो टीम के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं उसके संबंध में जानकारी भरनी पड़ती है। और टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग में भी उसी तरह से वर्तमान में अगर शिक्षकों के साथ हमने कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया है तो उसका डाटा हम लोगों को भरना पड़ता है। और मंथली रिकॉर्ड में जो हम लोग एजुकेशन ऑफिशियल के साथ ज्वाइंट विजिट किए हैं या रिपोर्ट शेयर किए हैं, उसके अलावा उन लोगों के साथ अगर मीटिंग किए हैं तो इस संबंध में जानकारी डालनी पड़ती है। तो इससे होता यह है कि हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ का जब प्लान बनाते हैं तो आसानी से इन डाटा को देख के रिव्यू कर पाते हैं और नेक्स्ट मंथ का प्लान बहुत ही प्रॉपर तरीके से बना पाते हैं। उसी प्रकार जब मैं जो ब्लॉक लेवल डाटा है कुछ जो हम लोग जो सीसी लेवल पे हैं, जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर लेवल पे हैं, तो वो लोग भरते हैं, तो उसमें बीआरसी कोर कमेटी मीटिंग का डाटा रहता है, चिल्ड्रन इवेंट का डाटा रहता है, और साथ ही साथ एसएमसी चेंज मेकर ग्रुप की जो मीटिंग होती है और उसके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं या सपोर्ट होते हैं उसके संबंध में जानकारी डालनी पड़ती है। तो इन जानकारी को डालने के बाद फिर हम लोग जब इसका वापस से रिव्यू करते हैं नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाने से पहले, तो हम लोग आसानी से अपना प्लान को स्मूथली बना पाते हैं। अब इसमें एक और चीज है कि अवनी ऐप में फील्ड कोऑर्डिनेटर जब डाटा भरते हैं और यदि उनसे डाटा भरने में कोई एरर हो गया है ना, या कोई गलत डाटा उन्होंने भर दिया है और उन लोगों को मतलब ध्यान में आया कि उन्होंने गलत डाटा भर दिया है, तो इस केस में वो लोग क्लस्टर कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म करते हैं
और क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो है अपने लेवल से उन डाटा को एडिट कर पाते हैं। तो जो भी चेंजेस जो है फील्ड कोऑर्डिनेटर के लेवल से कराया जाता है वो चेंजेस कर दिया जाता है और फिर जो प्रॉपर डाटा है वो अवनी ऐप पे चला जाता है। उसी तरह हम लोग बेनिफिशियरी का नाम, जैसे कि टीचर हुआ, वॉलंटियर हुआ या एजुकेशन ऑफिसर हुआ, इसका नाम हम लोग अवनी ऐप में जोड़ पाते हैं आसानी से। और एक बार यदि हमने कोई भी बेनिफिशियरी का नाम जोड़ दिया तो दोबारा उसे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उस बेनिफिशियरी का नाम से के साथ डाटा को जोड़ना है अगर फ्यूचर में, तो हम लोगों को दोबारा उनका नाम एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब अवनी ऐप पर ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आता है उसके आधार पे अपनी टीम को नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाने में बहुत ही आसानी होती है, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बन पाती है और जो अपने फील्ड कोऑर्डिनेटर है वो स्मूथली काम करने में जो है उनकी मदद हो पाती है। अवनी ऐप के द्वारा हमें डाटा का रिव्यू और स्टेटस चेक करने में बहुत ही आसानी हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि अभी जो हम लोग अवनी ऐप यूज कर रहे हैं तो उससे हम लोग को जिस प्रकार का मदद मिल रहा है उस प्रकार का मदद आगे भी मिलते रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Thank you, Imtiaz. So this is the kind of dashboard, and I would request Sukhdev to explain this dashboard. Sukhdev, and then yes ma'am. also later on share how this whole Avni thing had evolved and how the development process had happened, both for the Avni app and also the dashboard. So Sukhdev will continue from here. यस, थैंक यू मैम। ये अवनी ऐप का डैशबोर्ड है, क्योंकि हमने उसमें डेटा एंट्री कर रहे हैं तो हमें इसका एक डैशबोर्ड का भी हमें ज़रूरत है कि हम वो डेटा का एनालिसिस देख सके या उसका रिपोर्ट्स देख सके। तो ये कुछ हमने स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ये सैंपल पे हमने दिए हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्क्रीनशॉट पे हम देख रहे हैं कि हम कितने स्कूलों तक रीच आउट कर पा रहे हैं, हमारा जो काम है वो कितने स्कूलों तक कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि दो टाइप्स का एक स्कूल दिख रहा है, तो इंटेंसिव दिख रहा है, एक एक्सटेंसिव दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा स्कूल का नंबर दे रहा है कि इंटेंसिव स्कूल कितने और एक्सटेंसिव कितने हैं। इसमें ये भी है कि फर्स्ट कॉलम पे स्टेट दिख रहा है, फिर सेकंड कॉलम में डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक्स है। तो इस पे ये है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं, ब्लॉक वाइज भी देख सकते हैं, या हम स्कूल लेवल पे भी हम देख सकते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी देख सकते हैं। तो इस पे है ये प्लस का साइन, इस पे क्लिक करने पे ये बाइफर्केशन हो जाता है ये ब्लॉक्स वाइज। तो ये फर्स्ट स्क्रीन जो है हम अपना स्कूलों का आउटरीच देख पा रहे हैं। सेकेंड स्क्रीनशॉट जो राइट साइड पे है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो स्कूल है कि हम एक प्रिंट रीच करना स्कूलों को, ये हमारा स्कूल पे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसका एक रिपोर्ट है कि कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे हमने प्रिंट रीच कर दिया है। इसमें भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव बाइफर्केशन किया हुआ है। तो ये प्रिंट रीच का एक रिपोर्ट्स है। फिर है ऑपरेशनल डैशबोर्ड है। ये ऑपरेशनल डैशबोर्ड हमें ये मदद करती है कि हम कितने स्कूलों का डेटा भरे, किस डिस्ट्रिक्ट का पेंडिंग है या ओवरड्यू में है या कैंसिल किया गया है या फिर ये कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट हमने नेक्स्ट स्लाइड में भी लगाया हुआ है, तो हम और डिटेल पे बात करेंगे। थर्ड जो स्क्रीनशॉट है ये हमारा SMC मीटिंग्स का है, जहाँ हम ये देख पा रहे हैं, मंथ वाइज देख पा रहे हैं कि हमारा जो स्कूल्स हैं उनमें कितने में SMC की मीटिंग्स हुई है। और ये इंटेंसिव स्कूलों का है और इसका एक लास्ट में एक टोटल भी लिखा हुआ रहा है। तो ये कुछ स्क्रीनशॉट है। ऐसे तो हमारे पास काफी रिपोर्ट्स है, लेकिन यहाँ स्क्रीनशॉट में सैंपल बेसिस पे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। जी मैम। सबसे पहले जब हम अवनी के साथ जब जुड़े तो हम इसका एक स्टेप बाय स्टेप है कि हम फर्स्ट में क्या किया कि सपोज कीजिए कि हमें अवनी से जुड़े तो हम पूरे अपने प्रोग्राम का डेटा रिक्वायरमेंट डायग्नोसिस किया गया कि हमें चाहिए क्या और हमें कैसा हम देखना चाह रहे हैं डेटा एंट्री पोर्टल। तो उस पर हम काफ़ी डीपली डिस्कशन किए समन्वय टीम के साथ में। फिर समन्वय टीम अपने प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट को समझे, फिर हमें एक सॉल्यूशन बना के दिए, जिसमें पहले हमने अपना जो रिक्वायरमेंट है वो गूगल शीट पे डाला
कि हमें ये रिक्वायरमेंट है। फिर उसका डिजाइन गूगल शीट पे ही किया गया समन्वय टीम के द्वारा। फिर वहाँ जब गूगल शीट पे जब सारे फॉर्म्स डेवलप्ड हो गए, वहाँ पे जो भी हमें वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन डालना था, लाइक वैलिडेशन डालना है, कंडीशन डालना है कि कहाँ पे मुझे नंबर लेना है, कहाँ पे टेक्स्ट लेना है, कहाँ पे हमें क्वेश्चन स्किप करना है, तो ये सारे कंडीशन हमने गूगल शीट पे डाला। फिर उसका रिव्यू हमने किया। उसके बाद फिर अवनी टीम ने उसको एप्लीकेशन पे इम्प्लीमेंट किया, मतलब एप्लीकेशन डिजाइन किया, उसी गूगल शीट के क्वेश्चन आयर के अकॉर्डिंग किया। फिर हमें ये दिया गया अवनी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम, तो हमने फिर से क्रॉस चेक किया कि जो गूगल शीट पे जो हमने रिक्वायरमेंट डाला था वो एप्लीकेशन पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। यस, कुछ कंडीशन ऐसे थे कि मैंने यस किया तो कुछ दूसरे क्वेश्चन आएंगे, नो किया तो क्वेश्चन कहीं और जंप हो जाएंगे। तो सारा रिव्यू हमने अवनी एप्लीकेशन पे किया। सारे लगभग 36 फॉर्म थे, सभी का हमने रिव्यू किया अवनी एप्लीकेशन में। उस समय भी कुछ कुछ समस्या हमें आई, जो फिर हमने समन्वय टीम को बोला कि इसमें ये चीजें मिसिंग है या ये चीजें थोड़ा करेक्शन करने की जरूरत है। तो फिर उसके बाद समन्वय टीम ने उसको करेक्ट किया, फिर दोबारा से हमें वो रिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए। फिर हमें जब ये फाइनल हो गया, सारे फॉर्म्स फाइनल हो गए, तो हमें एक यूएटी पीरियड दिया गया जो 30 डेज का था, जिसपे हमें ये टेस्टिंग करना था सारे फॉर्म्स का। लाइक हमने 36 फॉर्म हमने बनाए थे, जिसपे हम स्कूल लेवल के फॉर्म्स है, आंगनबाड़ी लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक्स लेवल के हैं, स्टेट लेवल के फॉर्म्स है। ये तो सारे फॉर्म्स हमने एक एक करके रिव्यू किया और यूएटी पे लगभग 38 मेंबर को टेस्टिंग के लिए दिया गया। तो यूएटी पे भी लोगों ने काफी डमी डेटा डाला, टेस्टिंग किया। उसके बाद वहां पर भी कुछ कुछ चीजें लगा कि टीम की तरफ से आया कि कुछ चीज जोड़ा जाना चाहिए या कहीं पे कंडीशन काम नहीं कर रही है। तो वो चीजें फिर यूएटी पीरियड में उसको सुधार किया गया, फिर उस पे करेक्ट किया गया। फिर फाइनली हमें एक अवनी एप्लीकेशन का एक फाइनल स्टेज आया, जिसपे सारा करेक्शन करने के बाद हमें ये अवनी एप्लीकेशन मिला। फिर अभी हम उस पर डेटा एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद ये डेटा एंट्री का हमने पूरा हो गया। उसके बाद हमें एक डैशबोर्ड की जरूरत थी, तो फिर हमने अपना रिक्वायरमेंट समन्वय टीम को डाला कि हमें ये इस टाइप का हमें डैशबोर्ड देखना है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम डेटा पे ही काम कर रहे थे, डेटा ही डाल रहे थे। अब हमें रिपोर्ट्स का हमने रिक्वायरमेंट डाला, वो भी गूगल शीट पे डाला कि हमें देखना कैसे है, सैंपलिंग कुछ हमने टेबल्स दिया और कुछ ग्राफ्स भी दिए दिए कि हमें ऐसे देखना है। तो हमारा रिपोर्ट्स लगभग 350-400 के आसपास था। तो काफी लंबा रिपोर्ट था, काफी हेवी रिपोर्ट था। तो इस पे समन्वय टीम के द्वारा एक सजेशन दिया गया कि हम सिनी के कुछ मेंबर्स को ट्रेन कर देते हैं कि मेटाबेस पे रिपोर्ट्स कैसे डेवलप होते हैं। तो उसमें मैं भी था, तो मुझे भी ट्रेनिंग मिला। तो फिर मुझे 2 दिन का ट्रेनिंग मिला, जिसमें समन्वय टीम ने काफी सपोर्ट किया। फिर मुझे मैं खुद से कुछ 270 रिपोर्ट्स है जो मैंने बनाया। इस पे ये चीज भी है कि एक मेरे लिए भी लर्निंग अच्छा हुई कि मैं कभी मेटाबेस को जानता नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। तो मेरे लिए भी एक लर्निंग का पार्ट हुआ कि मेटाबेस पे रिपोर्ट्स कैसे बनते हैं, रिपोर्ट्स का डिजाइन कैसे करते हैं, वहां पे फिल्टरेशन यूज कैसे करते हैं, या ड्रॉप डाउन कैसे डाला जाता है। तो उसमें मल्टीपल डेटा कैसे काउंटिंग क्या कहाँ पे कैलकुलेशन आता है, तो वो काफी मुझे क्लियर हुई। इस पे समन्वय टीम ने काफी मेरा मदद भी किया, क्योंकि डैशबोर्ड जब डेवलप कर रहे थे तो मुझे काफी समस्या हुई थी। तो हमने इतना 270 रिपोर्ट्स बना। बाकी जो रिपोर्ट्स हैं वो अंडर प्रोसेस है, वो क्योंकि उस रिपोर्ट्स में कुछ कोडिंग डालना पड़ता है। तो वो समन्वय टीम उनको उस रिपोर्ट्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि वो कोडिंग वाली चीज है, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स है जो समन्वय करेगी, और अभी अंडर प्रोसेस है। ये कुछ रिपोर्ट्स है, जैसे कि यहाँ ऑपरेशनल रिपोर्ट्स है। तो इस पे इस स्क्रीनशॉट पे हम देख पा रहे हैं कि टोटल शेड्यूल विजिट दिख रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फॉर्म वाइज है। राइट साइड में देखेंगे तो ये फॉर्म्स का नाम है, और लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो फॉर्म्स का नाम है, राइट साइड में देखेंगे तो उसका काउंटिंग है।
तो ये है कि हमारा फॉर्म्स कितना भरना है, कितना शेड्यूल है, तो यहाँ पे ये फॉर्म वाइज दिख रहा है। ऐसे ही फिर हम टोटल ओवर ड्यू विजिट में कितना फॉर्म्स अभी भरना बाकी है, तो ये यहाँ पे देखेंगे ये भी फॉर्म वाइज दिख रहा है, ये उसका काउंटिंग दिख रहा है। इस पे एक चीज है कि ऊपर में देखेंगे इसमें फिल्टरेशन है, ऊपर में डेट दिख रहा है, तो हम कोई डेट रेंज भी ले सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं। लाइक मुझे प्रीवियस 2 महीने का डेटा देखना है, या 3 महीने का देखना है, या किसी एक ही महीने का देखना है, तो हम इसमें एक डेट रेंज भी हम फिल्टरेशन कर सकते हैं। फिर वैसे फिर है विजिट टाइप्स है, तो विजिट टाइप्स में है कि हम किसी एक फॉर्म का अगर देखना चाहे तो हम वो भी यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। फिर स्टेट भी हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी फिल्टर कर सकते हैं, ब्लॉक्स भी कर सकते हैं, क्लस्टर भी यहाँ पे हम फिल्टर करके इस रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इसी का पार्ट्स है ये भी। इसमें ये दिखाया गया है कि अगर किसी ने फॉर्म को कैंसिल किया है तो कितने फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं, तो ये फॉर्म वाइज नंबर ऑफ कैंसिलेशन दिखा रहा है, कितने फॉर्म कैंसिल हुए हैं। फिर ये लास्ट स्क्रीनशॉट पे है कि टोटल कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, फॉर्म्स वाइज नंबर ऑफ सबमिटेड डेटा का नंबर है ये स्क्रीनशॉट है। कुछ चैलेंजेस आई हमें जब अवनी एप्लीकेशन था में जब हम आए, तो कुछ चैलेंज आ रही थी। एक तो है कि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पूरा न्यूली था, पहले कभी इस टाइप का एप्लीकेशन नहीं इम्प्लीमेंट हुआ था हमारे प्रोग्राम पे, तो ये फर्स्ट था हमारे लिए। तो टीम को या मुझे भी कुछ इसमें टाइम लगा इसको अंडरस्टैंड करने, इसको समझने में, इसमें फेमिलियर होने में। तो टीम को ओरिएंट किया गया इसमें फर्स्ट टाइम, तो टीम को समझ में नहीं आया। अभी तो काफी 3-4 बार हमने ओरिएंट किया, तो फिर टीम को ये समझ में आ गई। अभी काफी फेमिलियर कुछ हद तक हुए हैं, फेमिलियर होकर डेटा भी 4 महीने से हम यहाँ पे इस पे हम डेटा डाल रहे हैं। कुछ इशू ऐसे थे कि कैचमेंट एरिया वाला था, कि सपोज कीजिए कि हमारे जो फील्ड कोऑर्डिनेटर है उसको कुछ स्कूल नहीं दिख रहे हैं या आंगनवाड़ी नहीं दिख रहे हैं, तो इस टाइप का कुछ इशू था जो हमने समन्वय सपोर्ट टीम के पास हमने ये इशू वगैरह हम रखे। कुछ ऐसे इशू थे जो कि फॉर्म दिख नहीं रहा था। सपोज कीजिए मुझे लाइब्रेरी का भरना है डेटा, बट मुझे लाइब्रेरी का फॉर्म ही नहीं दिख रहा है। तो कुछ टेक्निकल इशू था जो अवनी सपोर्ट टीम के द्वारा ये रिजॉल्व कर दिया गया है। अभी तो ये रिजॉल्व हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये टेक्निकल चीजें है जो आगे भी शायद ये हो सकती है। और एक तो है कि हमारी टीम जो है इसमें अभी प्रोएक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी 2-3 महीना और टाइम लगेगा हमारे सारे टीम्स को प्रोएक्टिव होने में, क्योंकि हमारा टीम बहुत बड़ा है, लगभग 150 के आसपास है झारखंड और उड़ीसा मिला के। तो सभी को एक प्रोएक्टिव बनाना भी एक चैलेंज है, तो वो एक वो समस्या है, इससे गुजर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इस पे एक चीज था, मैं थोड़ा इस पे मुझे जो अवनी सपोर्ट टीम का जो सिस्टम है वो मुझे काफी थोड़ा सा मतलब कि अच्छा लगा कि हमें जब चैलेंज आती है अवनी एप्लीकेशन पे, तो हम अवनी का एक सपोर्ट टीम है जिसका एक अलग सा ही पोर्टल है जिसमें हम टिकट रेज करते हैं। फिर उस टिकट रेज पे हम ये लिखते हैं कि हमारा समस्या क्या है, वो किस टाइप का समस्या है, लाइक वो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम्स है या फीचर का कुछ इशू है, या कुछ नया चीज हम यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, तो वो टाइप्स डालना पड़ता है। फिर उसका एक प्रोबेबिलिटी आता है कि आप उसको प्रायोरिटी कैसे कर रहे हैं, आप वो लो है या तो हाई है या मीडियम है, या उसको आपको अर्जेंट उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये सारी चीजें पोर्टल पे डाल के अगर उसका कुछ स्क्रीनशॉट हो तो अटैच कर देते हैं, या कुछ जिससे अवनी टीम को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में समस्या क्या है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिख के हम उसको एक सबमिट करते हैं। फिर उसका एक आईडी ईमेल पे आ जाता है कि आपने इसमें अरेंज किया हुआ है, टिकट अरेंज किया हुआ है, तो फिर वो फिर अवनी टीम देके फिर इशू को रिजॉल्व करती है। तो ये चीजें हैं, और इसमें हम सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि मुझे सुनने के लिए थैंक यू सभी लोगों को। ठीक है। Okay, thank you so much, Sukhdev.
So basically, we are still working on the app. Like Sukhdev said, that our team members need to get to use to this app. अभी भी डेटा मतलब लोगों को भरने में दिक्कतें आ रही हैं, उनको ऐप यूज करने में दिक्कत आ रही है, कभी फॉर्म्स नहीं दिख रहे हैं या स्कूल्स नहीं दिख रहे हैं, आंगनवाड़ी नहीं दिख रहे, इस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं। और हमारी टीम को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के उस पर काम करना पड़ेगा, जो हम कोशिश कर रहे हैं। So that is it from our side, and if there are any questions, we'll be happy to take up. Thank you so much. Thanks a lot, Divya, for agreeing and really organizing this session. I mean, this was like very well coordinated between you, Suki, Imtiaz, and Sukhdev. And it was a very wonderful session in that sense. So thanks a lot to you. And Durgi, that was like an excellent overview of what happens on the field and things like that. So it was very useful. It was very useful to actually listen to you about how the app is actually being used in the field, what challenges came in, and how it's actually being benefiting people. And Imtiaz, again, that was wonderful how you explained how operations and planning is handled. And one thing, Sukhdev is like a star in this sense, 270 reports, developing all these in a very, very short time frame. In fact, all of those screenshots are actually reports developed by Sukhdev, whereas in most implementations, we actually develop these reports, but in this case, this was almost completely done by Sukhdev and his team. So that is something that's like an achievement in this particular project. There are new projects where we're actually trying to do self-service implementations, but where people do everything together, but these are relatively small implementations. This is a relatively big implementation which are with a very high number of reports requirements. So that was really like a very nice job done in that sense. So thanks, Sukhdev, for showing us how the reports are being built. And over to everybody else for any questions. We have around 2 minutes left, so about a couple of questions if there are any. Hi, I just wanted to ask one question to the last presenter. Am I audible? Yeah. Yeah. So I just overheard that, while developing the questionnaire, is the coordinator or anybody, they are able to create the questionnaire on Avni app? Or is it something, Avni people are doing it? Have you got my question? Samanvay is only helping them to create a Yes. questionnaire in the app, or the Cine people are doing that by themselves? सुखदेव, क्वेश्चनर कैसे डेवलप हुआ था? मतलब आपने किया था या फिर आपने क्वेश्चनर बना के दिया था एंड अपनी टीम ने, या फिर समन्वय ने उस पे हेल्प किया था, ऐसा? हाँ सुखदेव, आप शेयर जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था ना कि हमने अपना एक तो पूरा रिक्वायरमेंट डाला हुआ था। इससे पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट था, एक BWI करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो था, उसके साथ भी हमने एक टेम्पलेट बनाया हुआ था पूरा, क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का फॉर्म्स हमें चाहिए, तो वो एक्सेल पे एक हमने बनाया हुआ था। तो हमने वही एक्सेल का सीट समन्वय टीम को प्रोवाइड किया था। उसके बाद समन्वय टीम के साथ हमने काफी लेवल पे मीटिंग्स की, उस पे फिर हमने उसको करेक्ट भी किया, कुछ कुछ वहाँ गलतियां भी थी, कुछ चीज हमने ऐड किए, कुछ चीज हमने हटाए। तो बेसिकली एक गूगल सीट बनाया गया था जिसपे हम अपना रिक्वायरमेंट डाल रहे थे कि क्वेश्चन क्या होगा, सब क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन के अंदर कंडीशन क्या होगा। तो ये सारा एक्सेल पे ही हम रिक्वायरमेंट दिए थे। Okay. जी Thank you so much.
सो धनश्री, अगर जस्ट टू मतलब अवनी में दोनों तरीके से किया जा सकता है। इस केस में समन्वय टीम ने ही डेवलप किए थे क्वेश्चंस अवनी का ऐप डिजाइनर यूज करके। बट अवनी में वो फीचर है, जैसा मतलब इवन शेल्टर डज इट, कि जहाँ पे खुद से आप क्वेश्चंस वगैरह ऐड कर सकते हो, Yeah. या फॉर्म ऐड करना है, क्वेश्चंस ऐड करना है, तो वो आप कर सकते हो। Okay, okay. Thank you. और हम लोग अब मतलब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करने लगे हैं, तो वी प्रोवाइड ट्रेनिंग। अगर किसी को सीखना है पूरा अपनी एंड टू एंड सेटअप करना, तो दैट ऑल्सो वी डू, सो दैट यू लर्न वन टाइम एंड देन, जैसे सुखदेव बोल रहे थे कि वो एक बार मेटाबेस सीखा तो वो काफ़ी उनके लिए मतलब एम्पावरिंग भी था। इस बहाने उन्होंने वो टूल भी सीखा। तो उसी तरह से फॉर्म्स वगैरह सेटअप करना अवनी में ये भी मतलब सीखा जा सकता है। कुछ जगहों पे जैसा मेटाबेस में भी रिक्वायर्ड है, कुछ जगहों पे कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही अवनी में भी अगर कहीं पे फॉर्म्स वगैरह सेटअप करना है तो कुछ जगहों पे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है अगर, या ऐसा कुछ है, तो कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती है। बट काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन और ड्रैग एंड ड्रॉप से हो सकती है। एंड उसी इसमें आप मदद करते हो फिर, ऐसा ना? हाँ। All right. Thank you so much. All right, so we are at time. It's 4:02. Um, Thanks everyone for attending. It was a wonderful session, and see you again next month.